So let us begin with next question 81. A thin metal disc of radius r floats on water surface and bends the surface downwards along the perimeter, making an angle theta with vertical edge of the disc. If the disc displaces the weight of water W and surface tension of water is T, then the weight of metal disc is. तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से. We are solving question related to surface tension. हमें बोला है a thin metal disc. तो सबसे पहले एक thin metal disc लेते हैं. So we have a thin metal disc. So let us take a thin metal disc here. Okay, so you have a thin metal disc. आगे आपको बोला है of radius r floats on water surface of radius r. इसका radius r है which floats on surface of water and bends the surface downwards along the perimeter making an angle theta and bends the surface downwards. So it bends the surface downwards. इसने surface को नीचे bend कर दिया, making an angle theta with the vertical edge of the disc. Making an angle theta with vertical edge of the disc. So basically vertical edge मतलब ये एंगल जो है ये थीटा है. This angle is theta. This is what they are telling you. Then if the disc displaces a weight of water W and surface tension is T, then the weight of metal disc is. तो जैसे आपने metal disc को यहाँ पे रखा, if it displaces some amount of water, they are asking you what is the weight of metal disc. तो कैसे solve करोगे इसको? Option number, क्योंकि oral question है, this is oral. You need to know how to solve this. तो कैसे solve होगा? कौन से forces है? Which forces are there? Force of buoyancy, okay. Then force of surface tension and what is W? ये force of buoyancy है. If the disc displaces weight of water W, weight of liquid displaced is beyond force. Upthrust, तो upthrust दे दिया आपको W. Surface tension का force होगा 2 pi RT cos theta. क्यों? क्योंकि surface tension, remember, हमेशा ये समझ लो, ये जो मेटल डिस्क है आपके पास, इसका वेट है mg which is vertically downwards. ये mg है और surface tension is along the tangent. तो ये है surface tension T, right? Surface tension का ये कंपोनेंट हो गया T sin थीटा और ये कंपोनेंट है T cos थीटा. अगर आपको याद होगा यहाँ T sin थीटा है तो यहाँ पे भी T sin थीटा है, तो T sin थीटा will cancel out और T cos थीटा कंपोनेंट्स आपके पास पूरे के पूरे डिस्क पे आएंगे. तो you will have T cos theta components everywhere. तो everywhere मतलब पूरे के पूरे circumference पे. तो total T cos theta या कितने कंपोनेंट्स आएंगे? 2 pi r. तो याद रखना surface tension is always along tangent. Tangent के दो कंपोनेंट्स आ गए, मतलब surface tension के दो कंपोनेंट आ गए T sin and T cos, क्योंकि पूरे के पूरे डिस्क पे कांटेक्ट है लिक्विड का. तो T sin थीटा यहाँ पे टू द राइट है, यहाँ पे टू द लेफ्ट होगा. यहाँ देखोगे तो आउटसाइड अंदर की तरफ इनसाइड, तो दे विल कैंसल आउट. तो कौन से कंपोनेंट सरवाइव करेंगे? कॉस कंपोनेंट. कितने कॉस कंपोनेंट? सर्कमफरेंस, क्योंकि यहाँ पे बोला है, they have mentioned this. A thin metal disc of radius r floats on the surface of water and bends the surface downwards along the perimeter. Perimeter मतलब डिस्क का सर्कमफरेंस. तो डिस्क का सर्कमफरेंस जहां जहां पे लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट होता है वहां पे सरफेस टेंशन होता है. तो T cos थीटा into 2 pi r, ये टोटल कंपोनेंट्स आ गए. टोटल कंपोनेंट्स किसके? T cos थीटा के. और ऊपर की तरफ और एक फोर्स है, कौन सा है? अपथ्रस्ट. और अपथ्रस्ट आपको बता दिया, कितना बताया? हाउ मच वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना बोला है? W. तो अपथ्रस्ट भी है, अपथ्रस्ट भी ऊपर की डायरेक्शन में है. तो ऊपर की डायरेक्शन में टोटल कौन कौन से फोर्सेस है? W which is upthrust and
2 पाई आर टी कॉस थीटा, ये किसको बैलेंस करेंगे, वेट को, तो क्या आएगा mg इक्वल टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा प्लस w, ऑप्शन नंबर सी। ये ओरल क्वेश्चन था, वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, water rises in vertical capillary tube up to a height of 2 centimeter. If the tube is inclined at an angle of 60 degree with the vertical, then up to what length the water will rise in the capillary tube. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास वाटर है and in this you are inserting a capillary. If you dip a capillary in this, ये आ गया कैपिलरी, तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वाटर का जो लेवल है वो राइज होगा, और ये राइज कितना बोला है h। अगर अब इंस्टेड इसको हमने टिल्ट कर दिया, इसको हमने 60 डिग्री से टिल्ट कर दिया, तो व्हेन यू आर टिल्टिंग इट 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो ये इमेजिन ये वर्टिकल है, इमेजिन हमने इसको टिल्ट कर दिया, तो ये जो एंगल बन गया ये एंगल है 60 डिग्री। तो अब इस केस में लेंथ ऑफ वाटर इन दिस ट्यूब, ये लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन दिस ट्यूब विल बी हाउ मच, तो दैट इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अच्छे से समझ के लेना, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास कैपिलरी था, आपने स्ट्रेट इंसर्ट किया है, तो यू हैव हाइट h, अब इसी को टिल्ट कर दिया बाय 60 डिग्री, तो यहाँ जो लेंथ आएगा, कितना लेंथ, इतना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, राइट, करेक्ट। इसको मैं बोल देता हूँ s, या फिर आपको l बोलना है तो l बोल दो। तो व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी नाउ, तो कैसे फाइंड करोगे, how will you find it out? It's simple thing। हाँ, ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ द कैपिलरी है, ये एंगल कितना है 60 थीटा, अल्फा बोलो थीटा बोलो, अल्फा इज रिजर्व फॉर, सॉरी थीटा इज रिजर्व फॉर एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो अल्फा यूज कर लेंगे। ये क्या था h, ये क्या है n, राइट। तो इफ यू नो, डू यू नो trigonometry? So if you know trigonometry, you can see, what do you see, what is cos alpha, what is cos alpha, adjacent side upon hypotenuse, तो L क्या आएगा h upon cos alpha, तो h कितना था 2 था ना, 2 सेंटीमीटर, cos of alpha, alpha कितना है 60, what is cos 60, 1/2 1/2 1/2 4, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लिटिल डिफिकल्ट। फाइंड द एक्सेस प्रेशर on one side of a soap film of surface tension T over that on the other side R1 and R2 are radii of the two surfaces। हमको पहले क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करना पड़ेगा। फाइंड द एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर मतलब डेल्टा पी, मतलब कौन सा लॉ, लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। फाइंड द एक्सेस प्रेशर ऑन वन साइड, मतलब PI इनसाइड PI of a soap film of surface tension T over the other side, over the other side, over the other side मतलब outside, तो PI माइनस PO सोप फिल्म होता है, तो 40/R, राइट। तो कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, और आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया है वेयर R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ द टू सरफेस, मतलब थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक्सेस प्रेशर ऑन वन साइड ऑफ सोप फिल्म, वन साइड ऑफ सोप फिल्म, ये अंदर का साइड है, ये सोप फिल्म जो है इसको आप बबल भी मान सकते हो, मानना चाहो तो सिर्फ दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि ये सोप फिल्म का कुछ थिकनेस है, दैट्स इट। तो R1 and R2 are radii of the two surfaces, so it is not very thin, तो थोड़ा सा thickness है, तो you are supposed to find out what is excess pressure। तो how do you find out excess pressure, कैसे find करते हो,
If you remember formula, what is formula of excess pressure? Delta P equal to 4T by R. Correct? Right? 4T by R. तो अब क्या करेंगे बताओ? दो बार अप्लाई करना है, दो बार कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है पहले वो बताओ। तो लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ के करना पड़ेगा। फिल्म बोलना मतलब हमेशा 40 बाय आर नहीं आता है। आपको पूछा है P3 माइनस P1 इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड इज P3, आउटसाइड इज P1, लेकिन दोनों के बीच में कौन है? P2। तो पहले मैं यहाँ पे, और रिमेंबर 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 दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सोप सॉल्यूशन या जो भी सॉल्यूशन होगा वो है, मतलब ऊपर का सरफेस यहाँ पे फ्री नहीं है। अगर आप P3 और P2 यहाँ पे लैप्लास लॉ अप्लाई कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू लैप्लास लॉ P3 माइनस P2 इक्वल टू 2T बाय R1, क्योंकि इनर रेडियस इज R1। और 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, मतलब ये सरफेस फ्री नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली ऊपर के दो सरफेस पे जब अप्लाई करोगे तो लिखोगे P2 माइनस P1 इक्वल टू 2T बाय R2। हमें चाहिए था P3 माइनस P1, P3 माइनस P1, तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज P3 माइनस P2 प्लस P2, P2 P2 कैंसल। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, एंड देन वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यू विल गेट P3 minus P1 equal to 2T by R1 plus 2T by R2। तो P3 minus P1 2T कॉमन 1 by R1 plus 1 by R2। तो ऐसा आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है। Thin metal disc of radius r floats on water surface, bends the water surface downward along the perimeter, making an angle theta with the vertical edge of the disc. अब यहाँ हमने देखा, if the disc displaces weight of liquid equal to W, surface tension is T, 2 pi r t cos theta plus W। ठीक है, we will compensate for this question, एक extra question ले लेंगे। The radii of two columns in U-tube are R1 and R2। radii of two columns in U-tube, एक U शेप का ट्यूब है और उसके जो दो साइड्स है, दोनों साइड सेम रेडियस के नहीं है, एक का रेडियस R1 है दूसरे का R2 है। When a liquid of density rho, angle of contact is I think should be theta, तो angle of contact is फिलहाल 0 पकड़ के चलते हैं, 0 डिग्री, is filled in it, liquid with angle of contact 0 मतलब कौन? Water is filled in it, the level difference in the two arms is h, the surface tension of liquid is given by। So first of all let's understand question। U-tube, you have U-tube, उसमें एक साइड का रेडियस ज्यादा है, एक साइड का कम। अभी आपको बोला है क्या कौन सा रेडियस ज्यादा कौन सा कम नहीं बताया, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा someone is bigger। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे सब ऑप्शन में R2 minus R1 R2 minus R1 R2 minus R1 दिख रहा है, तो मतलब सेकंड साइड का रेडियस ज्यादा होगा, तो ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे। तो इट इज जस्ट बाय अजम्पशन कि सेकंड साइड का रेडियस जो है U-tube के सेकंड साइड का रेडियस है ग्रेटर देन द फर्स्ट साइड। तो दिस इज व्हाट यू विल हैव। अब इस U-tube को कंप्लीट कर देते हैं, तो यू विल हैव मोर और लेस लाइक दिस। ओके, तो एक साइड का रेडियस ज्यादा है, एक का कम है, ये R1 है और ये R2 है, where R1 is less than R2। अब क्वेश्चन में बोला है, इसमें हमने एक लिक्विड भर दिया जिसका डेंसिटी रो है। वैसे तो समझ में आना चाहिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 मतलब वाटर, वाटर का डेंसिटी मतलब 1000, लेकिन आंसर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी है। तो अब लेवल डिफरेंस में टू आर्म्स इज h। सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन से साइड में हाइट ज्यादा होगा। R1 के साइड में, क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R।
तो R कम तो H ज्यादा, तो यहाँ पे ज्यादा लिक्विड होगा बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हाइट, नॉट इन टर्म्स ऑफ मास। मैं ज्यादा बोलता हूँ यहाँ पे, ज्यादा का मतलब ये नहीं होता कि लिक्विड का मास ज्यादा है। यहाँ पे व्हेन आई से ज्यादा है तो ज्यादा इन टर्म्स ऑफ हाइट है। वी डोंट नो इन टर्म्स ऑफ मास, ऑफ फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, तो वी विल नॉट फाइंड इट आउट। तो मोर और लेस इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा है। देन कोई और लिक्विड बोला है क्या? नहीं, नो अदर लिक्विड इज देयर, एक ही लिक्विड है तो वो एक ही लिक्विड लेंगे, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्री एंड है, आई विल ड्रॉ अ लाइन हियर। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ बी, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ सम पॉइंट ए। हमें फाइंड क्या करना था? हमको पूछा था सरफेस टेंशन। यू शुड रिमेंबर, अगर दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो प्रेशर भी होगा सेम। तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। यहाँ तक क्लियर? इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? प्रेशर एट ए, ये लेवल डिफरेंस कितना था? h, राइट। तो प्रेशर एट ए विल बी h रो g प्लस इसके ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कैंसिल हो जाएगा वो, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो व्हाट विल यू डू? तो रिमेंबर, डायरेक्टली PA इक्वल टू PB लिखने से काम नहीं होगा। तो यू मस्ट रिमेंबर दोनों का रेडियस अलग था, और इन रियलिटी जब हम PA इक्वल टू PB लिखते हैं तो वो हाफ ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि PA इक्वल टू PB लिखना और बोलना इसके ऊपर एटमॉस्फेयर था, इसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल है, वो अंडर अ कंडीशन है। वो कौन सा कंडीशन है आपको समझ में आएगा अभी। तो इन रियलिटी एक्चुअली सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डेल्टा PA इक्वल टू शुड बी डेल्टा PB। दिस इज व्हाट यू शुड गेट। एक्चुअली यही होता है, सिर्फ हम दोनों साइड का रेडियस सेम है तो वो एक्स्ट्रा टर्म कैंसिल होती है जो लैप्लास लॉ से आ रही है। डेल्टा PA मतलब यहाँ पे ऊपर क्या है? h रो g प्लस, क्योंकि ये सरफेस कर्वेचर है, मतलब मिनिस्कस है कॉनकेव, तो यहाँ आप लिखोगे, यू विल राइट डाउन pressure difference. What is pressure difference? 2T by R1। ये हम लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते? सो रीजन है क्योंकि यहाँ पे आप लिखोगे 2T by R2। अगर R1 इक्वल टू R2 है तो वो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो दैट इज द रीजन दैट यू डू नॉट राइट। लिखते नहीं हो मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, देयर इज दिस टर्म। तो h रो g इक्वल टू 2T by R2 माइनस 2T by R1। ये भी गलत है बट ठीक है, मेथड समझ लो फिर करेक्ट कर लेंगे। h रो g इक्वल टू 2T कॉमन 1 by R2 माइनस 1 by R1। तो यह आएगा h रो g इक्वल टू 2T R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो T चाहिए था तो यहाँ से T मिल जाएगा। T you will get from here as R1 into R2 h रो g upon 2 into R1 minus R2। करेक्ट? हमारे पास ऐसा इक्वेशन नहीं है, हमारे पास h रो g R1 into R2 upon 2 into R2 minus R1 है। हमारा क्या आया? R1 minus R2। ऐसा क्यों आया? सिंपल रीजन, एक्सट्रीमली, बाकी सब करेक्ट, एक्सट्रीमली सिंपल। एक छोटा सा गलती हुआ है, वो मिस्टेक ये था, कभी भी याद रखना, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड माइनस कॉन्वेक्स साइड, क्योंकि कॉन्केव साइड पे प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। हमने जब लिखा डेल्टा PA इक्वल टू h रो g प्लस, यहाँ पे गलती हुई। वाई? क्यों? हमने क्या लिखा था? प्लस। प्लस क्या लिखा था हमने? प्लस लिखा था 2T बाय R1। वैसा होगा नहीं क्योंकि ऊपर ज्यादा प्रेशर है, ये कॉन्केव मिनिस्कस है, तो क्या लिखोगे? माइनस 2T बाय R1 इक्वल टू माइनस 2T बाय
R2. तो दिस इज वेयर वी वेंट रॉन्ग. तो अब हो गया सब करेक्ट. दिस इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट करोगे तो 2t by R1 प्लस एंड R2 माइनस. तो ये आ जाएगा h rho g इक्वल टू 2t कॉमन 1 by R1 माइनस 1 by R2. तो अब आ जाएगा h rho g इक्वल टू 2t R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2. अब मिल जाएगा T इक्वल टू R1 R2 h rho g अपॉन 2 इंटू R2 माइनस R1. क्लियर, राइट. तो सिर्फ छोटी सी गलती थी, वो था कि हमने यहाँ पे लिखना चाहिए था माइनस, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड प्रेशर इज लेस देन आउटसाइड. तो हम नॉर्मली इनसाइड माइनस आउटसाइड इक्वल टू प्लस 2t/r लिखते हैं. वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो केस किसका था? लिक्विड ड्रॉप का था. लिक्विड ड्रॉप में कॉन्केव साइड होता है अंदर और कॉन्वेक्स होता है बाहर. तो प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड. तो प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज 2t/r. हमारे पास जो ट्यूब था, ट्यूब में अगर आप देखोगे तो ट्यूब में यहाँ पे जो कर्व सरफेस है उसमें इनसाइड प्रेशर ये कम है आउटसाइड के कंपैरिजन में. तो हमने लिखना क्या चाहिए था? आउटसाइड माइनस इनसाइड इक्वल टू 2t/r. हमने क्या लिखा? इनसाइड माइनस आउटसाइड. तो नेगेटिव लिखा है इसके लिए. यू नीड टू नो दिस. दिस इज अ वेरी सिंपल करेक्शन. So this is how you are supposed to solve this question. Done. Next question. A soap bubble in vacuum has a radius of 3 centimeter and another soap bubble in vacuum has a radius of 4 centimeter. एक का 3 centimeter radius है, एक का 4 centimeter radius है. If the two bubbles coalesce under isothermal condition, isothermal मतलब same temperature, T is constant, then the radius of the new bubble is good. तो अच्छा क्वेश्चन है. सोप बबल, बबल मतलब 40/r. हमारे पास एक बबल है जिसका रेडियस आपको दिया है 3 सेंटीमीटर R1. दूसरा बबल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर. दोनों कंबाइन होके सिंगल बबल बन गया. तो ये 5 सेंटीमीटर नहीं आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट टेक इट लाइक दिस. वो कैलकुलेट करके देखेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है. तो यू हैव R1, you have R2, and these two combine to form a single drop, single bubble, not drop, जिसका रेडियस हम मान लेंगे कैपिटल R. तो सबसे पहला टास्क ये है, हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल R. दिस इज कैपिटल R इज रेडियस. तो एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ R फाइनल. फॉर सम रीजन कैपिटल R यूज नहीं करूंगा मैं. क्यों? आइसोथर्मल कंडीशन बोला. आइसोथर्मल कंडीशन मतलब यू हैव टू अप्लाई गैस इक्वेशंस. गैस इक्वेशन में पहला गैस इक्वेशन क्या है? PV इज कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. करेक्ट, राइट. मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V. तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाना पड़ गया तो PV इक्वल टू nRT. तो वो R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और ये R है रेडियस. तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाई. So first thing is, how do you find out what is R final? बाकी सब बाद में. Conservation of volume. Volume of this bubble, first bubble equal to volume of plus volume of second bubble equal to volume of big bubble. तो ये आ गया bubble number 1, bubble number 2, and this is final, which is I will say big. तो पहले का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है. It is not velocity. It is volume. Volume of first plus volume of second equal to volume of big. Volume of first bubble is a sphere. Sphere has a volume of 4/3 pi r cube plus 4/3 pi r2 cube equal to 4/3 pi r final cube. Right? Then 4/3 कॉमन. तो आपको मिलेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इक्वल टू RF क्यूब. राइट.
थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर, क्योंकि क्यूब आएगा कि नहीं पता नहीं, विल चेक इट आउट। तो जब मैं आर फाइनल लेता हूँ तो मुझे मिलेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब का क्यूब रूट। व्हाट इज R1? 3। व्हाट इज 3 क्यूब? 27। व्हाट इज R2? 4। व्हाट इज 64? व्हाट इज 27 प्लस 64? 91। 91 का क्यूब रूट क्या होता है? हाँ, व्हाट इज 91 का क्यूब रूट? आता है क्या कुछ? 4 पॉइंट समथिंग, राइट? तो मैंने इसलिए बोला यू हैव टू बी केयरफुल। ये बबल था, बबल में ऑल द मास इज ऑन द सरफेस, राइट? तो यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्जर्वेशन की जगह पे अगर हमने सरफेस एरिया कॉन्जर्वेशन अप्लाई किया होता, करके देखते हैं, वी विल सी, वी विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। करके देखते हैं, आंसर करेक्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर मेथड चेंज। तो A1 प्लस A2 इक्वल टू A। इनिशियल एरिया प्लस इनिशियल एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस इनिशियल एरिया ऑफ सेकंड इक्वल टू फाइनल। A1 plus A2 equal to A final. What is area of a bubble? 4 pi r square. R1 square plus R2 square equal to 4 pi r final square. 4 pi गया, तो R final square equal to R1 square plus R2 square. तो reasonably correct आ रहा है हमारा, क्योंकि ये R1 square, ये 3 square आएगा, 9 वो 4 है, 4 square 16 plus 9 25 का रूट 5। तो ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, विच इज रीजनेबली करेक्ट, मतलब मोर और लेस हमारा सही ट्रैक पे है। हमको फाइंड क्या करना था? हमको फाइंड करना था रेडियस ऑफ न्यू बबल अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, राइट? अब कोएलेस हो गया, हमने डायरेक्टली ऐसा अप्लाई कर दिया, 5 सेंटीमीटर मिल गया, पर ये आइसोथर्मल कंडीशन ये हमने कब यूज किया गया? नहीं। तो दिस आंसर मे नॉट बी करेक्ट। तो थोड़ा सा रिमेंबर, ये जो लेवल है दिस इज एच प्लस जे लेवल, तो डायरेक्टली ऐसा बोल के भी नहीं चलेगा। लेट अस सी। आपको याद है हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमारे पास 2 बल्ब थे। एक बल्ब था एक बाथ में जहाँ का टेम्परेचर था 0 डिग्री, और एक था दूसरे हॉट बाथ में जहाँ का टेम्परेचर था 100 डिग्री। तो ऐसे केसेस में आपको पूछा था व्हाट इज फाइनल प्रेशर। एक बल्ब है जो कोल्ड रीजन में है, दूसरा बल्ब है जो हॉट रीजन में है, दोनों बल्ब को कनेक्ट कर दिया, वॉल को ओपन कर दिया। रिमेंबर, वॉल ओपन करने के बाद क्या हुआ था? नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? तो यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है। इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एयर मॉलिक्यूल्स इज N1, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज N2। रिमेंबर दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स। तो N1 और इसमें N2 दोनों मर्ज होने के बाद you will have N। तो what you can write is N1 plus N2 equal to N। नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हो, doesn't matter। क्या आगे? PV equal to nRT, small n, okay। स्मॉल n कैपिटल N एक ही चीज है। तो PV equal to nRT, PV equal to nRT। तो n is PV by RT, PV by RT plus PV by RT equal to PV by RT। P1 V1, P2 V2 and P final V final। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब सबका सब टेम्परेचर रहेगा सेम। गुड। आर टी कॉमन निकाल के होना चाहिए कैंसल, आइडियली कैंसिल होना चाहिए। तो क्या करोगे अब? इसका क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये आर टी तो गया, तो P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू PF VF। रिमेंबर, जब जब बबल की बात हो और सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट हो, उस केस में प्रेशर की जगह पे लिखते हो डेल्टा प्रेशर। डेल्टा प्रेशर मतलब एक्सेस प्रेशर। तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर ऑफ फर्स्ट डेल्टा P1 इंटू V1 प्लस
डेल्टा P2 इंटू V2 प्लस डेल्टा P फाइनल इंटू V फाइनल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट इज डेल्टा P1? 4T by R1। V1 is 4/3 pi R1 क्यूब। जो हमने जो आंसर किया लाया था वो सही था, सिर्फ फिजिक्स गलत था उसके पीछे। हमने बोला हाँ वॉल्यूम से नहीं आ रहा है तो एरिया को कांस्टेंट मान लो। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम से नहीं आया तो हमने क्या बोला, इनिशियल एरिया इक्वल टू फाइनल एरिया। आंसर सही था, मेथड गलत था। अब वही आंसर आएगा देखो। तो यू विल हैव दिस। व्हाट इज डेल्टा P2? 4T by R2। दिस इज 4/3 pi R2 cube equal to delta P final is 4T by R final 4/3 pi R final cube। तो जो कांस्टेंट है वो सब बाहर। R1 क्यूब बाय R1 इज R1 स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट है सब बाहर। 16 कांस्टेंट, T कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 4 4 16 T पाई और 3 कांस्टेंट। R1 क्यूब बाय R1 इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 16 T पाई बाय 3। ये आएगा R फाइनल स्क्वायर। कैंसल 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 एंड कैंसल। तो आंसर हमारा सेम आएगा विच इज 5। सिर्फ जो मेथड ऑफ सॉल्विंग था वो इनकरेक्ट था। अब एज अ ट्रिक जो मैंने पहले सॉल्व किया उसको मैं अब एज अ ट्रिक याद रखने वाला हूँ। एज अ ट्रिक क्या याद रखेंगे? जब आइसोथर्मल कंडीशंस हो तब, क्योंकि तब जाके यहाँ का जो टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर T टेम्परेचर है, इसको मैं टेम्परेचर बोलने के लिए T डैश बोलता हूँ। दिस इज टेम्परेचर और ये T क्या है? सरफेस टेंशन। तो जब आइसोथर्मल कंडीशन होंगे, आइसोथर्मल कंडीशन, तो उस केस में एज अ ट्रिक A1 plus A2 इक्वल टू A फाइनल, या फिर एज अ ट्रिक फाइनल रेडियस इज अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बट रिमेंबर कहीं पे भी मत अप्लाई करना। एसेंशियल कंडीशन इज क्या? आइसोथर्मल। याद रहेगा पक्का। अगर मैंने आपको बता दिया मेरे पास दो बबल है, एक का 6 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर है, व्हाट इज फाइनल रेडियस? 10। अब मैंने इसको चेंज करके बोल दिया मेरे पास बबल की जगह पे ड्रॉप है, सेम, क्योंकि वो 2 या 4 तो कांस्टेंट है, वैसे भी वो कैंसल होगा, राइट? गुड, तो डन। क्वेश्चन नंबर 86। remember under isothermal conditions directly use this and done। कोई सॉल्व नहीं करना, स्ट्रेट अवे दो ड्रॉप्स, दो बबल्स अगर मर्ज हो रहे हैं तो स्ट्रेट अवे R फाइनल इज अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 87। If pressure at half the depth of a lake is equal to 2/3 pressure at the bottom of the lake। हमने ऐसा या फिर सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है। इफ आई रिमेम्बर, आई थिंक आंसर 20 मीटर था, फिर भी हम देखेंगे। तो यू हैव प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ अ लेक विच इज इक्वल टू 2/3 एट द बॉटम ऑफ द लेक। ओके, सही है। देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक? वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। तो कभी भी याद रखो, डेप्थ पे ज्यादा ही प्रेशर आएगा। जितना ज्यादा लिक्विड का कॉलम होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो यहाँ पे ये डेप्थ है, डेप्थ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ A, और ये डेप्थ को मैं मान लेता हूँ D। देन हाफ द डेप्थ, मतलब ये पॉइंट B, दिस इज पॉइंट B, दिस इज हाफ द डेप्थ, दिस इज बेसिकली h/2, d/2, d/2। You have this as d/2। आपको बोला है प्रेशर एट A, प्रेशर एट हाफ द डेप्थ, मतलब प्रेशर एट B। What is pressure at B? 2/3 प्रेशर एट A। प्रेशर एट हाफ द डेप्थ, d/2 पे प्रेशर जितना होगा PV is equal to 2/3 of PA। So what is difficult here? प्रेशर कैसे फाइंड करते हो? H rho G। यहाँ पे H कितना है? d/2, आगे rho G, बस खत्म। उसके ऊपर कुछ नहीं था, उसके ऊपर क्या था? एटमॉस्फेयर। यहाँ पे 2/3 प्रेशर एट A इज
डी रो जी, उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, राइट। देन डी रो जी बाय 2 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 2/3 डी रो जी प्लस 2/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको सॉल्व कर लो। 1/2 इज half, 0.5, 2/3 is 0.66. So what you can do is 2/3 d rho g minus half d rho g equal to इसको वहां शिफ्ट किया तो 2/3 P0 को यहाँ शिफ्ट करो, तो यू कैन शिफ्ट इट, यू कैन से P0 माइनस 2/3 P0, तो यह आ जाएगा आपके पास 2/3 माइनस how much 4 minus 1 by minus नहीं plus 4 minus 3 1/6 d rho g equal to 1/3 atmospheric pressure, 1 and 2 जा, तो d rho g equal to 2 times of atmospheric pressure। हमें क्या फाइंड करना था, डेप्थ, तो डेप्थ will be equal to, how do you find out atmospheric pressure? What is atmospheric pressure? What is atmospheric pressure? I am not asking very difficult question. I am asking you what is the value of atmospheric pressure? Roughly 1.01 into 10 power क्या? So roughly 10 power 5. That is what I am asking you. Simple. What is density of water? 10 power 3. What is G? 10. ऊपर 10 power 5, नीचे 10 power 4, तो ऊपर क्या बचेगा, तो 2 into 10 कितना, तो 20 मीटर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, डन। एंड रिमेंबर बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग सॉल्विंग, एक गलती होती है, वो गलती ऐसी होती है कि हम ऐसा लिख देते हैं प्रेशर एट बी इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट ए। प्रेशर एट बी इज क्या, प्रेशर इज एच कितना है, dy/2 रो जी, करेक्ट, एच रो जी। एटमॉस्फेयर भूल जाते हैं, इक्वल टू 2/3 क्या, डी रो जी, ओके, डी रो जी कैंसल, 1/2 इक्वल टू 2/3, ऐसा नहीं हो सकता, तो एटमॉस्फेयर आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ, पहली बात तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो गया, हाफ कैन नॉट बी इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of contact between glass and water is 0 and it rises in a capillary up to 6 centimeter when its surface tension is 70 dynes per centimeter। dynes per centimeter is CGS unit, कुछ नहीं है, अगर कन्वर्ट करना है तो यू कैन कन्वर्ट इनटू फ्रॉम डाइन्स टू न्यूटन, 10 power -5 होता है, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में, तो नो नीड टू कन्वर्ट। आगे बोला है अनदर लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 140, इसका 70 उसका 140, रेशियो मिल गया आपको 1/2, राइट। एंगल ऑफ कांटेक्ट 60, एंगल ऑफ कांटेक्ट cos 0 1 cos 60 1/2, रेशियो मिल गया 2। तो ऐसा करते जाओगे, पढ़ते पढ़ते आ गया T1/T2 is 1/2, cos theta 1 by cos theta 2 is 2, right। relative density, what is relative density? density upon density of water, right। हमारे पास जो दूसरा लिक्विड है उसका डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी है 2, मतलब डेंसिटी है 2000, वाटर का 1000, तो इसका 2000, राइट। विल राइज इन द सेम कैपिलरी बाय, तो वापस क्वेश्चन एक बार अच्छे से देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ग्लास एंड वाटर, वाटर बन गया लिक्विड नंबर 1, लिक्विड 1 का थीटा 1 कितना 0, एंड इट राइजेस इन अ कैपिलरी अप टू 6 सेंटीमीटर, H1 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। surface tension T1 is 70 dynes per centimeter। another liquid of surface tension, और ये वाटर है तो डेंसिटी कितना है 1000 क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब में कितना 1, ये 1 है, राइट। देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अनदर लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन है कितना 140, तो T2 कितना है 140 डाइन्स पर सेंटीमीटर
देन आगे बोला है एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है 60 डिग्री, तो थीटा 2 इज 60 डिग्री। विल राइज टू हाइट, हाइट पूछा है, h2 आपको पूछा है, और आपको रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू कितना 2, तो डेंसिटी रो टू विल बी 2 into density of water, but density of water is 1, so this is 2। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। h पूछा था, h is 2t cos theta by r rho g। सेम कैपिलरी r कांस्टेंट, सेम प्लैनेट g कांस्टेंट, 2 तो वैसे भी कांस्टेंट, तो h इज प्रोपोर्शनल टू t cos theta by rho। तो h2 by h1, क्योंकि h2 फाइंड करना है, तो h2 by h1 will be t2 by t1 cos of theta 2 by cos of theta 1। सिर्फ डेंसिटी उल्टा आएगा, रो 1 by रो 2, क्योंकि डेंसिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स तो उल्टा। t2 by t1, t2 कितना था 140, t1 कितना है 70, cos थीटा 2 मतलब cos of 60, और दिस इज cos of 0। ये रो 1 है 1, ये है 2, 1 एंड 2 कैंसल एंड कैंसल, cos 60 is 1 by 2 and cos 0 is 1, तो 1 by 2, तो h2 is h1 by 2, h2 is h1 by 2, h1 था 6, तो 6 by 2 is 3, तो 3 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप बबल ऑफ रेडियस r is blown। ब्लोन मतलब पहले नहीं था, तो इनिशियल एरिया कितना था 0। तो वर्क डन जब फाइंड करोगे, वर्क डन और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है, बबल है तो 2 नहीं 4 लैपलास लॉ में वर्क डन या सरफेस एनर्जी में होता है टेंशन इनटू dA, वेयर dA इज चेंज इन एरिया। अब ब्लोन बोला है मतलब पहले नहीं था, मतलब इनिशियल एरिया 0 था, तो मैं d यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आई विल राइट डाउन जस्ट A, दैट इज फाइनल एरिया। ड्रॉप है तो, बबल है तो 2, so this is formula for energy मतलब work done after heating the solution, a second bubble of radius 2r is blown। तो पहले हमने एक बबल बना लिया जिसका रेडियस था r, फिर हमने सोप सॉल्यूशन को हीट किया, यू नो हीटिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ाना विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन, मतलब सेकेंड केस में सरफेस टेंशन पहले केस से कम है। तो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा है, अब सेकेंड जो बन गया उसका रेडियस कितना था 2r, द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्लो द सेकेंड बबल इन कंपैरिजन टू दैट रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट बबल इज डबल, slightly less than double, slightly less than 4 times, slightly more than 4 times। गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। तो नॉर्मली हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम अभी तक वर्क डन इक्वल टू टेंशन इनटू फाइनल एरिया देख रहे थे। फाइनल एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, और हम डायरेक्टली बोल रहे थे क्योंकि सॉल्यूशन सेम है तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरफेस टेंशन भी चेंज हो रहा है बिकॉज वी आर हीटिंग द सॉल्यूशन। तो W2 by W1 will be T2 by T1 R2 by R1 का स्क्वायर। तो फॉर द टाइम बीइंग बाकी सब बाद में, W2 by W1 T2 by T1 R2 is 2R and R1 is R, R और R कैंसल, तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो W2 by W1 is T2 by T1 into 4, but as I just told you T2 is less than T1, तो मतलब T2 by T1 is less than 1, ये less than 1 इक्वेशन नंबर 1 में जाएगा, तो therefore from equation number 1 and 2 what you can write down is T2 by T1 less than 1 है, तो फिर W2 by W1 ये less than 4 है, तो W2 is less than 4 times of W1, तो slightly less than 4 times, option number C। Next question,
वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सोप फिल्म। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिर्फ नंबर्स अलग थे, वैल्यू अलग थी। मतलब इन इंक्रीजिंग सोप फिल्म फ्रॉम, इनिशियल एरिया कितना है 10 into 6, मतलब कितना 60 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनिशियल एरिया 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 2 10 into 11 मतलब फाइनल कितना 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। 110 मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया कितना फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 50 इंटू 10⁻⁻⁴। कुछ नहीं, दोनों को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 50 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म इज, आपको वर्क डन बताया है 3 इंटू 10⁻⁴ तो हो गया। वर्क डन इज क्या है ये, नहीं नहीं वेट, व्हाट इज दिस, फिल्म फिल्म 2 TDA। हमें क्या पूछा है T, व्हाट इज T, W upon 2dA. What is W? 3 into 10⁻⁻⁴. What is dA? 50 into 10⁻⁻⁴. ज्यादा सोचना नहीं, ये 50 into 2 100। 100 अच्छा कैंसिल करो तो कैंसिल करो, डजंट मैटर। ये 100 ऊपर जाएगा तो 3 into 10⁻⁻2 क्या हर ए, लेकिन यूनिट क्या न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ए कहां से आ गया, अरे ये 50 इंटू 100 हो गया ना, ये ऊपर जाके 10⁻⁻2 हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट फॉर टुडे।